के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीलमपुर मर्डर केस में मुख्य आरोपी समेत 8 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में 3 नाबालिग शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी ईस्टर की बधाई। इजरायल के पीएम ने सेना को हमास पर दबाव बढ़ाने का दिया निर्देश। सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर दिल्ली आ रही फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज जिंद के उचाना कला जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कनौज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक को मिली धमकी। सुब्रत पाठक को मिली जान से मारने की धमकी, सपा कार्यकर्ता पर लगा आरोप। सुब्रत पाठक ने की कार्रवाई की मांग, अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अफगानिस्तान में बुद्ध प्रतिमा तोड़ने पर दिया बयान, सपा कार्यकर्ता जमदेश खान के कमेंट का लिया स्क्रीनशॉट। अगली खबर पुरी से है, जहां दूसरे चरण के समीक्षा बैठक के बाद उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कुंभपति ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे पूरी लिटरेरी फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। Yesterday, I came to Puri to participate in Puri Literary Festival. Today, I had a review meeting with the district collector, superintendent of police, and other officers belonging to different line departments, along with our MP, Mr. Sambit Patra, who is representing Puri Lok Sabha constituency, and our MLAs from the district. I started reviewing the districts to know about the profile of the district. What are the different developmental activities going on in the district? And also how far the schemes of the government are reaching the people, how effective the implementation of the developmental programs going on, like Pradhan Mantri Awas Yojana, Pradhan Mantri Jal Jeevan Mission, to give drinking water to every house with a tap, and the bankers. Lot of schemes were being proposed by the government, that Pradhan Mantri Jeevan Suraksha Bima Yojana, the accident insurance scheme. By just paying 20 rupees, the life is insured for 2 lakh of rupees. Even for the natural death, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, with 432 rupees premium, life insurance cover is being given for 2 lakhs. Atal Pension Yojana. So many schemes are there from government side. How the bankers are implementing, how the bankers are enrolling maximum number of beneficiaries, that we have reviewed with the district level bank lead manager and other representatives of the banks. And I also interacted with the civil society, what are the issues they are facing in Puri and other area. They have brought to my notice so many issues. The Honorable MP brought to the notice of the meeting with regard to the health infrastructure in Puri and the need to strengthen health infrastructure, to the need to start cardiology department in the hospital, and all the issues were being discussed.
And as far as possible, these issues will be brought to the notice of the state government, and we'll try to resolve to the maximum extent possible. Now I wish to visit two houses which were sanctioned under Pradhana Mantri Awas Yojana, and how the money is being given, how the subsidy is being disbursed, what are the, if any, difficulties they have faced. And also we had a review meeting with the Mudra beneficiaries. Mudra scheme is being introduced to support the youth who are willing to take up self-employment opportunities by taking bank loan. How the banks are cooperating with the Mudra beneficiaries, how the loans were being disbursed, and how they can enhance the coverage for more number of beneficiaries. All these issues we have discussed, and we appeal to the bankers to support as many as possible educated youth who are coming out of the colleges, universities. If they have any good idea, let them be supported by Mudra Yojana. That we have discussed all the issues threadbare from morning to the evening. Now I will be interacting with the beneficiaries of the Pradhana Mantri Awas Yojana. I think this will be the activity I am going to continue with other districts. On 30th, I am going to visit Ganjam district. In Ganjam district also we will be having a review like this. I hope to cover the entire state within 1 year or 1.5 years, covering all the districts. ମୋ ନାଁ ହେଲା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଘର ବୀରହରି କୃଷ୍ଣପୁର, ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କଲେ, କ'ଣ କହିବେ ଏହାକୁ ନେଇ? ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିଥିବାରୁ ଯାହା ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଦେଖା ହେଲେ, ସାକ୍ଷାତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ କହିଲେ ତୁମର କ'ଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମିଳିଛି, କେଉଁ ମସିହାରେ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ କରିଛ ନା ନାହିଁ, ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ କଥା ପଚାରିଲେ, ଏଇ କଥା ପଚାରିଲେ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ? ଯେ ଆମେ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆମେ ପାଇନୁ, ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଦେଇଥିଲୁ ତ ଆମ ନିଜ ନାଁରେ, ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ସେ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଆଗୁଆ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଏମିତିକା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଯେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସି ଗାଉଁଳି ମାନେ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲିକିରି ମାନେ ଆସିକିରି ଦେଖା କରିବା ଏବଂ ଆସି ବୁଝିବା, ଏମିତି ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଇଏ କରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସି ଇଏ କଲେ। ମୋର ନାଁ ସରୋଜିନୀ ନାୟକ, ଘର ବୀରହରି କୃଷ୍ଣପୁର, ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହି। କେତେ ବର୍ଷ ହବ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଲେ? ଆମେ ପାଇଲୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ପାଇଲୁ। 2022ରେ ନାଁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ, ପାଇଲୁ 2024 ଭିତରେ ପାଇଲୁ। କ୍ଲିୟର, ସବୁ କ୍ଲିୟର ଏକାରେ କଲେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘରଟିଏ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଘର ଥିଲା, କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ? ଘର ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ସେଥିରେ ଚଳିଲୁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ। ସାପ ଉପରେ ପଡ଼େ, ସାପ ମୁହଁରୁ କେହି ବର୍ତ୍ତି ପାରନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ମୁହଁରେ ଆମେ ସେ ସାପ ମୁହଁରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲୁ। କେବେ ଆଶା ମାନେ ସେତେବେଳୁ କେବେ ମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ କେମିତି ହବ? ଆଶା ରଖିନଥିଲୁ, ଆମେ ଘର କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିନଥିଲୁ। ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ସଦସ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିଛୁ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଘରେ? ଘରେ ଆମେ 3 ଜଣ, ବାପ, ପୁଅ, ମା, 3 ଜଣ ଅଛୁ। ଝିଅ ଥିଲା, ଝିଅ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଝିଅକୁ ବାହା କଲାରୁ ଏ ଘରଟିଏ ହେଇଥିଲା? ହେଇନଥିଲା। ତ ଝିଅ ସେଇ ଚାଳ ଘରେ ହିଁ ଝିଅକୁ ବାହା କରିଥିଲେ।
केबे माने एमती आको माने भाभी थिले कि एमती राज्यर राज्यपाल आसीबे बसिबे सांसद आसीबे बसिबे जीवन में भाभी नथली जीवन में एमती घटियो बोली आवास प्रधानमंत्री आवास योजना विषय रे केमती जानिले मा कोठु जानिले कोठु पंचायत रु से जानिले केते माने जेमती लागे लोक कोंदी कि ए जिनसटा बहुत लेट लागुची ये होची सेमती आपन मोर सेमती किछि हेतिला या पूरा आराम मनरो हमें छाडी दिलु पाइबु कि न पाइबु ना आछि सत 22 मासरे कि पाइबु बोले हम मनरे नथिला আজি आपण दुई जन को देखि गिरी हम जेतले देखिलु राज्यपाल बसले आपण को लोहटी माने आखिर लोह छळछळ हो जाउतला सेटा केमती कष्ट रे थिलु बोली नुवा छळछळ लाउची कोन कहबे जो माने भी आपण को सुनिबे सुनुचंती देखुचंती तांको पई कोन कहबे हम कोन कहबे केबे जेमती आशा जेमती आपण उठे बांधी थिले सेमती आशा बांधिलु माने घरटे केमती हबो खुशी रे केमती रहिबु ते पुओटे अछि बाहाबो गोटे बकरे हम चली पार नथिलु बहुत हैरान होथिलु आपण कहउतिले कथा हलारु कि घरे चाळ घर दिए थिला साप रो भी भय होतला केबे सेमती घटी छी घटी 5 थर कि 7 थर खंडे साप हम ऊपर पड़छि सोई अवस्था रे उठी कि बसिबो आ निद लागिबो छोटो साप या विषाक्त साप बोडा साप जानो हेले भी सेटा भी माने रक्षा हेतिला महाप्रभु सेटु भी रक्षा करते सेटु 5 थर रक्षा करचंती माने सेतु माने देह ऊपर पड़िया 6 आउ 2 थर पछपटे बस्तु पछपटे जाई चक्का मारी के थिबे किछि करना नै लाइन कटे हम बैठू बाहर पवन खाई पछपटे चक्का मारी के बसते तले पक्का घरटे पाइछंती प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार माने शांति रे उठे बसिगिरी खाई परिबे सुरक्षित रहि परिबे बहुत खुशी अछि शांति रे खाइबा सोइबा टिके बहुत खुशी अछि आ से भली भय किछि लागे से भली भय किछि जहा भी भय रहउछि साप देखले मन रे गोटे हे ज्ञान लागुछि नाही सत्र हम पारी पाई जाई घर जेतबेले नुवा हो गोटे छोटो पिला आसिले जेमति खुशी लागे आपन सेमति घर नुवा हला बेलको राज्यपाल आसी के पहुंचले सांसद आसी के पहुंचले ताकि ने केते खुशी बहुत खुशी मन रे भाबी नथलु एमती आसी पहुंचबे एते खुशी मन रे उत्पन्न हो बिली जान नथलु घर स्वतंत्र पसिया भीतर हम बहुत खुशी लागुछि आपन को जेते के जन आवास योजना पे अप्लाई करते सेमन कोन कहय चाहे सेमन कहय पे चाहे सेमन एमती खुशी होंतु दरकार पहिले आपन घर राज्यपाल जाई परंती कि तांको तरफ आ कि जाई परंती आ हमर को आछन मन उना करंतु नाही दरकार पहिले आसी पारंती कहीं प्रधानमंत्री अलाउ करचंती घरे घरे इनक्वारी करिया पे एबे ए जो राज्यपाल आस्थिले आजी घर को केते दिन हला जानिया को पाइले कि घर को राज्यपाल आसी हमें काली दिन 3टा बेलू जाई महिला समिति मीटिंग रे थिली मु सेता आसी के एठू पहुंचले आरआई ऑफिस लोक सब कथा कहिले मु मन रे हे ज्ञान कर देथिले मोल नाही कहउछन एमती हां आसीबे आसी बुली के जे गां देखि कि एमती घर भीतर आसीला मैं जान नथिलु सेते घर आसी आते खुशी लागिला घर को आस्थिले एवं पाखरे मध्ये बसथिले आपन को सहित ओ खुशी लागिला जोटा कि गोटे बड़ स्वप्न खुशी भी लागिला आनंद लागिला एते लोक भीतर हमको एते परिचय रे माने गणता करे बोली मन रे नथिला अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां डिया गांव में एक महिला का शव घर के कमरे में पंखे से लटका मिला।
पूर्व विधायक और पूर्व ब्लॉक मुख्य की बहू पूनम का शव एक कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला। जानकारी के अनुसार मृतका का अपने पति से एक दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। महिला की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मृतका के परिजनों ने इस घटना को संदिग्ध मानते हुए हत्या की आशंका जताई है। पूरा परिचय आपका बोले आपको परिचय का कला की सेवठा सिंगर हाँ थाना मर्दा आपका नाम जयराम पासी। क्या घटना हुआ है? वो घटना सर हुआ दे फांसी लगा के इस तरह से तुम नटई में विनीत मोती पासी तो क्या आप लोगों को कब पता चला? हमको चला है 2:30 बजे करीब। 2:30 बजे घटना कब की है? घटना वो लड़की फोन कैले रही है 2:30 बजे। तो हम कहे हैं ना कि सर हम कहें कि हम आ रहे हैं और तब तक ये लोग इतनी में घटना हुई। तो वो क्या कहा था? वो हमको वह कल से बाबू हमार मरले हम लोग ही आया हुआ है कपार पर फाट उठ गल बा। तब हमन को वहाँ से आओ जा तो बाहर से फोन आया कि ऐसे घटना हुई मर गई। आपको परिचय दो। शिव कुमार फांसी। क्या घटना क्या हुआ है? शिव कुमार घटना ये हुआ सर कि हम लोग को सूचना मिली है कि लड़की के गांव यहाँ से तो ये लोग बोले हैं कि वो लड़की फांसी लगा ली, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग गए हैं, देखे हैं मौका, तो वहाँ जहाँ वो लड़की का रूम है पंखा एकदम नज़दीक, हाथ से भी भिड़ जा रहा है, तो वो फांसी कैसे लगाई? हम लोग को इस पर शक है। ये लोग फांसी लगा करके मुका दिए हैं, करे लड़की फांसी लगा ली है। उससे पहले कोई सूचना नहीं थी हम लोग को। इस पे शक है? लड़के पर हम लोग को सर्व शक है, लड़का ने ऐसा कांड किया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सिंभावली से है, जहां पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, गौकशी के उपकरण बरामद किए गए। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज रात्रि करीब 9 बजे सिंभावली पुलिस द्वारा बड्डा नहर पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी, जहां एक बाइक सवार 2 संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया, जो भागे। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर बदमाशों द्वारा तमंचे से फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त सोमीन उर्फ मुन्नू घायल हुआ है, जिस पर लगभग 20 मुकदमे गोकशी, लूट इत्यादि के पंजीकृत हैं। उसके पास से एक बाइक, एक 315 बोर का तमंचा, खोखा कारतूस तथा जिंदा कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। उसका एक साथी भागने में कामयाब हुआ है, जिसके लिए काउंसलिंग कराई जा रही है और मजरूब को अस्पताल आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के देवबंद से है, जहां बालाजी धाम मंदिर परिसर में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ।
इस दौरान हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। मंदिर कमेटी के मुताबिक मुस्लिम युवाओं को क्रिकेट खेलने से मना किया गया था, उसके बाद भी विवाद हुआ। वहीं हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने पथराव और मारपीट की है, जिससे कई लोगों को चोट लगी। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। ये लगा जानकारी, अपना जो बालाजी धाम मंदिर है, यहाँ इसके बाहर कुछ दूसरे समुदाय के लोग जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे। 2 बच्चे अपने मंदिर में से निकल रहे थे, तो उनकी शायद किसी बात को लेकर उनकी कोई झड़प हुई है। उसके बाद उन बच्चों पर जो है आसपास के जो लोग हैं वो दर्जनों की संख्या में चढ़े हैं और मंदिर पर भी पथराव किया। उसी का आक्रोश ये लोगों ने अभी चाहते हैं पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के खिलाफ करनी चाहिए। इन्होंने मंदिर पर जैसे ये बता रहे हैं। आज 19 अप्रैल 2025 को रात्रि में थाना देवबंद को सूचना प्राप्त होती है कि कस्बे में जो बालाजी धाम मंदिर प्रांगण है उसके पास प्रथम पक्ष के कुछ लड़के खेल रहे थे, जिनके द्वारा दूसरे पक्ष के कुछ व्यक्तियों के साथ मारपीट एवं गाली गलौज की घटना की गई है। इसमें थाना देवबंद पुलिस द्वारा जो पीड़ित पक्ष है उसकी तहरीर पर थाना देवबंद पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा जो भी घटना में शामिल अभियुक्तगण हैं जिन्होंने मारपीट एवं गाली गलौज की घटना की है उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसमें थाना देवबंद पर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस पर एक हमारा प्राचीन बालाजी धाम मंदिर है जिसके आसपास सभी हमारे हिंदू व्यक्तियों के घर हैं। यहाँ पर आज क्या हुआ, यहाँ पर मुस्लिम लड़के क्रिकेट खेलते हैं जिनको यहाँ पर हर बार मना करने के बावजूद भी, प्रशासन द्वारा मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानते। आज क्या मामला हुआ, यहाँ पर कुछ मुस्लिम व्यक्ति क्रिकेट खेल रहे थे जिससे मंदिर के कुछ सेवागण यहाँ से निकल रहे थे। तो उन्होंने सेवागण को देखा तो उन्होंने गाली गलौज किया लड़कों को देखकर। उन्होंने कहा भैया गाली गलौज मत करो, तो उन्होंने उसके ऊपर इतनी बात पर पथराव किया, डंडों को बरसाया, जिसमें मुस्लिम व्यक्ति 50 से 60 साल के व्यक्ति भी थे और उनके द्वारा एक बयान दिया गया हिंदुओं को। कहते हैं अगर देवबंद में रहना होगा तो चैन से रहना होगा। मैंने तुम्हें देवबंद में रहने देंगे। मंदिर पे चौकी की मांग जी, मंदिर पे चौकी की मांग है। मंदिर पे चौकी की मांग है क्या आपकी? मंदिर पे कोई छोट की मांग नहीं है, चौकी की मांग है। चौकी बननी चाहिए, यहाँ पर बुद्ध बाजार ही बंद होना चाहिए। यहाँ पर बुद्ध बाजार भरता है जिसमें सारे मुसलमान ही व्यापारी आते हैं और सारे इधर उधर के गाँव के मुस्लिम व्यक्ति यहाँ पर बाजार में सामान खरीदने आते हैं। यहाँ पर चौकी बने, यहाँ पर प्रशासन हर वक्त रहना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर किराए पर रूम लिया और कुछ नहीं करा। यहाँ पर चौकी की मांग है हमारी। ये बालाजी धाम देवबंद का सबसे बड़ा मंदिर, जिसे देवबंद का सबसे विख्यात मंदिर माना जाता है, जिसकी शोभा यात्रा भी निकलती है। अगली खबर गुजरात के वापी से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ। ये उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने किया। बता दें कि इस केंद्र में ऑपरेशन थिएटर, लैब रूम, पुरुष और महिला वार्ड, प्रयोगशाला और फार्मेसी जैसी सुविधाएं हैं। वहीं इस दौरान मंत्री ने कहा कि दिसंबर 2025 तक वापी तालुका को 125 बिस्तरों वाला उप जिला अस्पताल मिलेगा। આજે વાપી મહાનગરપાલિકા ખાતે ₹1 કરોડના ખર્ચે બનેલા અર્બન પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। આ કેન્દ્ર 1 કરોડના ખર્ચે બન્યું છે। આમાં 2 MBBS ડોક્ટરની સેવા રહેશે, સાથે સાથે બેડ, મેડિકલ સ્ટોર, લેબોરેટરી બધીના પ્રત્યેક વ્યવસ્થા સાથે આ સુસજ્જ કરવામાં આવ્યું છે। અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માનનીય મોદીજી અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની આરોગ્યલક્ષી જે ચિંતા છે એને સાકાર કરતા સમગ્ર દેશમાં અને ગુજરાતમાં જ્યારે આવા કેન્દ્રો ઊભા થઈ રહ્યા છે ત્યારે દરેક જનતા આનો સંપૂર્ણ લાભ લે એવી અને વધુમાં જણાવતા આનંદ થાય છે કે વાપી ખાતે 125 બેડની જે હોસ્પિટલ આકાર લઈ રહી છે એના લીધે આ વિસ્તારની આરોગ્ય સેવામાં સુધારો થશે અને લોકોની આરોગ્યમાં સુધારો થશે।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम के विरोध में प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए हिंसा को लेकर राजस्थान के जोधपुर में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मांग की गई। व्हीप कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। संपूर्ण हिंदू समाज पूरे भारतवर्ष में जो पश्चिम बंगाल में जो घटना घटित हुई, 11 अप्रैल को संसद में कानून पास होता है वक्फ को लेकर संशोधित, उसमें हिंदू समाज का कोई लेना देना नहीं। वो संवैधानिक तरीके से कानून बनता है कोर्ट के उसमें संसद में, लेकिन जिस तरह से जिहादी मानसिकता के लोग षड्यंत्र पूर्वक हिंदू समाज को टारगेट कर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटना घटित हुई, लोगों को घरों से बाहर निकालकर महिलाओं का सील भंग किया गया, बहनों के साथ में अत्याचार हुआ, उनको घसीटकर जो घरों से बाहर निकाला गया, उनकी दुकानों को जलाया गया, मकानों को तोड़ा गया। संपूर्ण हिंदू समाज इस तरह की मानसिकता को कभी कदापि सहन नहीं कर सकता। तो आज हम राष्ट्रपति महोदया के नाम से कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं और जिसमें मांग कर रहे हैं कि हिंदू समाज की सुरक्षा और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है जिस मानसिकता से वो पिछले काफी समय से काम कर रही है, उसके अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ हो गई है अवैध, वो भी एक देखने के लायक है। और पश्चिम बंगाल आज भारत का हिस्सा होते हुए भी वहां पे हिंदू सुरक्षित नहीं है और मुर्शिदाबाद में हिंदू को शून्य करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, अन्यथा हिंदू समाज सड़कों पर निकलकर आंदोलन करेगा। यही हमारी विश्व हिंदू परिषद की मांग है। महेंद्र उपाध्याय, प्रांत सह मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। शिवमोगा में कर्नाटक सीईटी परीक्षा केंद्र में एक छात्र से जनेऊ उतरवाए जाने पर विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा, यह हिंदुओं के प्रति घृणा का जीवंत उदाहरण है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और ये हिंदू द्रोह, हिंदुओं के प्रति घृणा का एक जीता जागता और एक निकृष्ट उदाहरण है। आप देखिए कि जनेऊ के बारे में कहा जाता है कि हमारे शास्त्र में कहा गया है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यानी यज्ञोपवीत यानी जनेऊ सबसे ज्यादा पवित्र होता है, तभी इसको अंग्रेजी में भी सेक्रेड थ्रेड बोलते हैं इसको। और इस पवित्र धागे को पहनने की यानी धारण करने की और उतारने की अपनी एक पूरी शास्त्रोक्त परंपरा है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। लेकिन जो हिंदू द्रोह और हिंदू घृणा में अकंठ डूबे लोग हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता और उनकी घृणा सिर्फ ये है कि आखिरकार ये धागा क्यों पहना हुआ है, उनको सिर्फ धागा नजर आता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये सोचते हैं कि ये तो ब्राह्मणों का ही है। नहीं भाई, ये तो वेदोक्त वो है कि भी जो युक्ति है कि जब परम पवित्र है तो सबके लिए है, किसी जाति मत पंथ संप्रदाय का नहीं है। आप देखिए, मैं भी हूं तो जाति के हिसाब से बनिया हूं, धारण करता हूं जनेऊ और काम मेरा शूद्र है क्योंकि मैं नौकरी करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार मैं शूद्र हूं और जाति के अनुसार मैं अगर आप कहो तो मैं बनिया हूं, लेकिन अगर आपके हिसाब से जनेऊ धारण करता हूं तो ब्राह्मण हूं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की जो घृणा है ना, वो घृणा की पराकाष्ठा है और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर इस तरह का जो जहर बोना, मैं तो यही कहूंगा कि उस बच्चे को साधुवाद देता हूं, मैं मतलब प्रणाम करता हूं कि इस छोटे से बच्चे ने अपनी परीक्षा त्याग दी, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए वो बंदे ने जनेऊ नहीं त्यागा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा कि उसने माफी मांग ली, उसको सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ये कोई किसी एक वन ऑफ व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, क्योंकि परीक्षा के अंदर जनेऊ से क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? क्या नकल हो जाएगी? क्या सिक्योरिटी थ्रेट है क्या जनेऊ? क्या जनेऊ कोई विधर्मी या कोई बाहर का मामला है क्या? समझ में नहीं आता। इसका मतलब साफ साफ है कि कुछ लोग हैं
जिन्होंने हिंदू धर्म और उनकी मान्यताओं और उनके जो पवित्रता को ठेस पहुंचाने और उस पर आघात करने की सुपारी ले रखी है। तो ऐसी सुपारीबाजों को पहचानना बहुत जरूरी है। और देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग कहते हैं कि भाई ये ब्राह्मणों का, हमने हजारों ऐसे लोगों को जनेऊ धारण करवाया, सामूहिक जनेऊ धारण कार्यक्रम होता है और उसमें कोई हम जाति मत पंथ संप्रदाय नहीं पूछते, सबको कराते हैं। हमारे प्रतिदिन मैं यज्ञ करता हूं, यज्ञ में ब्रह्मा जो है वो किस जाति की कोई नहीं पूछता भाई। और अनेक हमारे मंदिरों में पुरोहित हैं, वो जिसको आप सो कॉल्ड दलित समुदाय कहते हैं, वो शास्त्रीय तरीके से, वैदिक तरीके से यज्ञ कराते हैं। और ऐसे एक नहीं है, सैकड़ों मंदिर हैं और ऐसे हजारों की संख्या में लोगों को जनेऊ धारण किया जाता है। लेकिन कर्नाटक सरकार जो है वास्तव में एक हिंदू द्रोहियों की सरकार बनती चली जा रही है, एक के बाद एक, कुछ न कुछ। आप देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब कर्नाटक असेंबली में गौ हत्या के विरुद्ध में जब बिल पेश किया गया था, तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन जो कांग्रेस की मैडम थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दोगे तो मुसलमानों के मुंह का निवाला छिन जाएगा। ये तो सोच है एक पार्टी की, तो आखिरकार उसको जनेऊ कैसे बर्दाश्त होगा। लेकिन मैं कांग्रेस को चेतावनी देता हूं कि अब इस हिंदू द्रोही मानसिकता से बाहर आए। अब समाज जाग गया है, आपकी सारी कलई खुल रही है। इस बारे में अविलंब जो है राज्य के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और जो भी लोग हैं इसके पीछे, इस कॉन्स्पिरेसी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। और तीसरा, इस बच्चे की परीक्षा के लिए भी कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहिए, जिसने साहसपूर्वक परीक्षा भली छोड़ी लेकिन अपना स्वधर्म नहीं छोड़ा। ये तो धर्मांतरण की तरफ ले जाने का एक बहुत बड़ा कुत्सित प्रयास भी है। यही तो ईसाई मछलियां करती हैं, एक एक करके पहले आपको प्रेम जाल में फंसाएंगे, फिर उसके बाद में कभी जनेऊ उतरवाएंगे, तो कोई मंदिरों से मूर्तियां हटवाएंगे, तो कोई घरों जाकर के वो जो पूजा पद्धति है उसको बंद कराएंगे। वही काम ये कर रहे हैं। तो ये अब बर्दाश्त नहीं होगा, इसको तुरंत रोकना चाहिए। उस बच्चे के लिए भी, जो बच्चे का आप देखिए बाल मन पर जो आघात हुआ है, उस आघात की सजा तो मिलनी चाहिए लोगों को और उस बच्चे को जाकर के पैसिफाई करना चाहिए। उसके लिए कुछ न कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट सरकार की तरफ से अवश्य होना चाहिए कि उसको अविलंब कोई नौकरी की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो कम से कम वो जो प्रतिभा है, जो टॉप करना चाहता था, एक मेरिट में आना चाह रहा था वो बच्चा, जैसे मैंने उसका इंटरव्यू देखा, तो उस प्रतिभा को आघात हुआ है, उसका कुछ न कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट सरकार को अविलंब करना चाहिए और माफी मांगनी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।